Friends, if you also want to speak English like me, if you also want to speak English like a native speaker, if you also want to speak English fluently and confidently, then this video is for you. If you want to start your journey, if you want to start your English speaking journey, then this video must be helpful for you. So without any further ado, let's get into the video. So friends, I Yashoda, welcome back to all of you in my YouTube channel English with Dehati Madam. And in this video, we are going to learn how and where to start learning this language and how to start speaking English. Yes friend, this video must be helpful for you if you are the one who wants to learn this language, who wants to speak English. So friends, in this video, I am gonna share with you step by step how you have to learn this language. Okay, and the first thing that you will have to learn is vocab. You have to enhance your vocab. First you have to learn different vocab, at least 400-500 vocabs. You must need to know about the meaning of some words like ghoda, gada, some animals name, some vegetables name, like some different kind of things like कार चलाना, some verbs, कार चलाना, खाना खाना, पानी पीना, बाजार जाना, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? At least you need some vocabs also if you want to start your journey. First, I think you must need some vocab to learn. Okay, and in vocab you also learn about like I, we, you, they, he, she, it. Okay, it's easy, it's not difficult. Okay, and after this you will have to learn some imperative sentences and daily use sentences like I have my food, I do the dishes, I open the door, I close the door, I comb my hair, I put on my dress. In this way you have to start your English speaking journey from the beginning. Okay, and after this you will have to learn, you will have to speak English from continuous tense, and which is present continuous tense. Only one tense, continuous tense, present continuous tense. Like मैं खाना खा रहा हूँ, I am eating food, मैं बाजार जा रहा हूँ. All the tense you have to start making on you. Okay, you don't need to make sentence on anyone. First you will have to talk to yourself, like you have to learn and you have to speak. You have to do both the things. If you are serious about this language, then you will have to do all the things. Okay, learning and speaking. In present continuous, मैं लिख रहा हूँ, I am writing, मैं बोल रहा हूँ, I am speaking, मैं English बोल रहा हूँ, I am speaking English, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, आई एम पुटिंग ऑन क्लोथ्स, मैं जूते पहन रहा हूँ, आई एम पुटिंग ऑन शूज़. ओके, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग, लाइक दिस. मुझे लगता है दोस्तों सबसे पहली चीज़ हम यही करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं धो रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ. जस्ट टॉक ऑल अबाउट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, और इसके बाद हम क्या करते हैं? हम अक्सर अपने आप से बोलते हैं मैं बाजार जाने वाला हूँ, मैं खाना खाने वाला हूँ, या फिर हम बोलते हैं मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ, मैं ब्रश करने जा रहा हूँ. ओके, then you will have to translate and you will have to speak this tense in English. Like I am going to, it's also a present continuous tense. Like I am going to have my food, मैं अपना खाना खाने जा रहा हूँ, या मैं अपना खाना खाने वाला हूँ. मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ. मैं
पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रीड। मैं इंग्लिश बोलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक। मैं लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइटिंग। ओके, इन दिस वे। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अक्सर अपने आप से बोलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे नहाना है, मुझे कपड़े धोना है, मुझे बर्फ़ जलाना है, मुझे पंखा चलाना है। तो आपको ये भी ट्रांसलेट करना है इन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अपनी, कि आपको स्टार्टिंग आपको ट्रांसलेशन से ही करनी है, बट ट्रांसलेशन को अपनी हैबिट नहीं बनानी है। ओके, अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आ गया मुझे ये करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है खुद से। आई हैव टू रीड, मुझे किताब पढ़ना है, या फिर मुझे पढ़ना है, या फिर मुझे किताब पढ़ना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है। आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना है। आई हैव टू वॉश क्लॉथ, मुझे कपड़े धोना है। आई हैव टू डू द डिशेज, मुझे बर्तन धोना है। इन दिस वे आपको कोई भी काम करना है तो आप सिंपली कह सकते हैं आई हैव टू ब्ला 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 दैट यू वांट टू डू। ओके, अक्सर करके हम अपने आप से कहते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, मुझे नहाना पड़ेगा, मुझे धोना पड़ेगा, मुझे सोना पड़ेगा, मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे बोलते हैं। अब इसमें हमें पड़ेगा तो सिंपली है, पहले हमने कहा था कि हमें करना है, अब हम कह रहे हैं हमें करना पड़ेगा। गा तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर का टेंस है, तो इसमें हम विल तो ज़रूरी लगाएंगे। इतना तो हमको नॉलेज है ही कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होता क्या है। प्रेजेंट में क्या होता है, जो हम काम कर रहे हैं। ओके, पास्ट क्या होता है, जो काम हो चुका है, वो समय ख़त्म हो चुका है। अब फ्यूचर में हम करने वाले हैं या फिर हम करेंगे। ओके, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टेंस में हम अपने आप से बोलते हैं कि मुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, मुझे नहाना पड़ेगा, मुझे सोना पड़ेगा, मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं। जैसा कि आपने पहले वाले में देखा था, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, इसमें आपको बस विल लगा देना है। हैव के आगे, हैव टू के आगे विल लगाना है। लाइक आई विल हैव टू हैव फूड, मुझे खाना खाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू द मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू लर्न दिस लेसन, मुझे यह लेसन पढ़ना पड़ेगा, या फिर मुझे यह पाठ पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू go to the market, I will have to go to the station, I will have to go to the Delhi, wherever you want to go and whatever you want to do, just speak in this way। बस आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत यही से करनी है। ओके, एंड इसके बाद आपको क्या लर्न करना है। इसके बाद में मुझे दोस्तों लगता है कि आपको सिंपल टेंस लर्न करनी। सिंपल टेंस में आपके आ जाते हैं 3 सेंटेंसेस। ओके, 3 सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर इंडेफिनेट टेंस, दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। आपको तीनों की वैल्यू पता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट हम प्रेजेंट चीज़ के लिए लगाते हैं, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं धोता हूँ, मैं जो कुछ भी आप करते हो, जैसे कि आई ईट फूड, आई गो टू द मार्केट, आई वॉक इन द मॉर्निंग, I get up in the morning. So present indefinite is very important। और इसके रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटरोगेटिव में क्या होता है, डू डज हम आगे लगा देते हैं, उसके बाद में हमारा आता है सब्जेक्ट, देन आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और उसके बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम अपनी पास्ट की चीज़ें बताते हैं किसी को कि मैंने ये काम किया, मैंने नहाया, मैं धोया, मैं पानी पिया, मैं खाना खाया, इन दिस वे।
और इसके भी नियम बहुत ही सिंपल है, इसमें बस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। लाइक जैसे रूल है सब्जेक्ट प्लस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंटेरोगेटिव होता है डिड हम आगे लगा देते हैं प्लस वर्ब की, डिड हम आगे लगा देते हैं, उसके बाद में हम लगाते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एंड अब इसके कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि आई मेड टी, मैंने चाय बनाई, मैंने चाय नहीं बनाई। आई डिडंट मेक टी, क्या मैंने चाय बनाई? डिड आई मेक टी? सिंपल। लास्ट हम इसमें देखते हैं इंडेफिनेट में हम फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट हम क्या करेंगे? हम खाना खाएंगे, हम पानी पिएंगे, हम नहाएंगे, हम धोएंगे, हम बाजार जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे। आई विल गो टू द मार्केट, आई विल हैव माई फूड, आई विल टेक माई शावर, आई विल ब्रश माई टीथ। मैं कुछ भी करूँगा, इसमें हम अपनी इसमें हम अपनी फ्यूचर की चीज़ें बताते हैं कि हम क्या करेंगे, हम कल क्या करेंगे, हम कल कहाँ जाएंगे, हम कल क्या पढ़ेंगे, हम कल क्या बोलेंगे। इन स्पोकन 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में आप अपनी प्रेजेंट की चीज़ें बताते हैं, पास्ट में आप अपनी पास्ट में की हुई चीज़ों को, हैबिट को बताते हैं, और फ्यूचर में आप अपना फ्यूचर की चीज़ें बताने वाले हैं कि आपकी क्या प्लानिंग है, इसको आप बताते हैं। और मुझे लगता है जो लास्ट टेंस इम्पॉर्टेंट है स्पोकन के लिए इन द बिगनिंग लेवल, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जैसे कि सपोज करो आपसे किसी ने पूछा यार खाना खा ले, आजा खाना खा, तो आप क्या कहते हो? नहीं यार मैंने खाना खा लिया, मुझे भूख ही नहीं है। तो अगर आपको इसको इंग्लिश में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे? मैंने खाना खा लिया है। ओके, मतलब कि आपने अभी अभी खाना खाया है, आपने पहले नहीं खाना खाया, अभी अभी खाना खाया है। तो नो यार, आई डोंट वॉन्ट टू ईट फूड बिकॉज आई हैव टेकन माई फूड, या फिर आई हैव ईटन माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया है। ओके, और हम और भी सेंटेंस ले लेते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, इसमें वैसे भी चुका है, चुकी है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं लास्ट में, जिसके इसकी पहचान यही होती है। और आपको बस यही देखना है कि वैसे चुका है, चुकी है हम सब में तो नहीं लगाते, बट जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है, मैंने नहा लिया है, मैंने धो लिया, लास्ट में इसमें या है भी आता है। ओके, अब जैसे कि मैंने इंग्लिश बोल लिया है, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके, मेरे ख्याल से दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतनी ही टेंसों की ज़रूरत है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो और आप अपनी इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं बिगिनर लेवल से, तो आपको शुरुआत में बस इतनी चीज़ों का ध्यान देना है। फर्स्ट है आपकी वोकैब, सेकंड है आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड डेली यूज सेंटेंसेस, इसमें आपकी ये आते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपकी 4 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट होता है जो हमारा कंटिन्यूस से रिलेटेड होता है कि मैंने खाना खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं धो रहा हूँ, मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। इसी में आपकी सेकंड चीज़ जो आती है मैं करने जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैं बर्तन धुलने जा रहा हूँ, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इसी में आता है कि मुझे क्या करना है, मुझे नहाना है, मुझे धोना है, मुझे पीना है, मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे बोलना है, मुझे इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर बनना है। और लास्ट इसी में होता है चौथा नंबर जो इसी के अंदर आता है, तीसरे पॉइंट के अंदर, वो होता है आपका कि आपको क्या करना पड़ेगा। आप अगर जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको बाजार जाना पड़ेगा, आपको नहाना पड़ेगा, आपको धोना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। 4 चीज़ें आ गई है तीसरी चीज़ के अंदर। उसके बाद में हम आएंगे सीधा टेंसों पर। टेंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं।
टेंस में हम क्या सीखेंगे, टेंस कौन कौन से होते हैं जो डेली यूज, हम वही टेंस फर्स्ट लर्न करेंगे क्योंकि हमें इंग्लिश शुरू से ही बोलना है, तो हम वही टेंस लर्न करेंगे जो हमारे इंग्लिश बोलने के लिए, जो हमारी डेली इंग्लिश स्पोकन के लिए ज़रूरी है। तो इस पर फर्स्ट क्या होता है, हम कोई चीज़ अपने से करते हैं तो शुरुआत भी अपने से ही करनी चाहिए। लाइक हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, इन दिस वे। सेकंड इसमें क्या होता है, इसके बाद आप क्या लर्न करेंगे, इसमें हम सिंपल इंडेफिनेट टेंस लर्न करेंगे। इसके अंदर आपके 3 टेंस आ जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में आप जो काम करते हैं, ठीक, लाइक मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ। लास्ट सेकंड कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जो आपने काम कर लिया। और लास्ट है फ्यूचर। फ्यूचर में अब क्या होता है कि जो आप करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, कभी भी करेंगे, ये आपके ऊपर है आप कब करेंगे, बट आप करेंगे। ओके, तो और लास्ट में मुझे लगता है कि जो टेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मैं काम कर चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं काम कर चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने पी लिया है, मैंने पढ़ लिया है, या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, मैं धो चुका हूँ, मैं बर्तन धो चुकी हूँ, मैं बाजार घूम चुकी हूँ, इन दिस वे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। जैसे कि मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मैंने कहाँ से शुरुआत की, तो मैंने तो यहीं से शुरुआत की है। मैंने कोई स्टार्टिंग में कुछ भी और नहीं ग्रामर पे फोकस किया है, मैंने ना कोई टेंसों पर फोकस किया है एक्स्ट्रा, ना मैंने किसी मॉडल, प्रेपोजिशन, किसी चीज़ पे मैंने फोकस नहीं किया है, बट मैंने बोलना स्टार्ट किया है। बस मैंने इनकी रूल्स देखे और मैंने बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि मैं सही बोलती हूँ कि गलत बोलती हूँ, बट मेरा एम क्या है, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीख के इंग्लिश बोलना, और बस मैं यही कर रही हूँ। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ और मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। तो फ्रेंड, मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इसमें मैंने आपको ज़्यादातर हिंदी में ही बताया ताकि मेरे सभी हिंदी मीडियम भाई बहन को अच्छे से पता लग सके कि हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले ही बोल पाएँ। ओके, सो मुझे लगता है कि अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन फ्रेंड, बाय बाय।